Hi guys, welcome to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with part 4 of FCAT 2 2021 current affairs series along with static GK. In case you're watching this video for the first time, please make sure that you go through part 1 to part 3 because that is very important and उसमें से काफ़ी question आने के chances हैं examination में. Also make sure that you go and download Insight SSB app because this is one of the best defense portals where you find all the courses regarding defense examination in very concise and precise manner. So please make sure that you download this app. In case you use any iOS device, you can simply download a Class Plus app and use an ORG code, which is organizational code, that is XVVEL, and use Insight SSB on any Apple device. So I have last time given you certain homework. So the quiz was there and you had to give the answers within that particular video. So now coming to the answers of the quiz that I gave you in part 3. So the question was that these awards are given for which particular field. Now talking about Kalinga Award, it is given for science and was started in 1952. Grammy Awards, they are given for music and were started in 1958. Now also, as I told, that nicknames are very important. So Nightingale of India बोला जाता था सरोजनी नायडू को, बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को एंड लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दे टेंड टू कम इन द एग्जामिनेशन. तो इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट निकनेम्स हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. ओके, now coming to the main thing, that is the current affairs. So who has become the youngest Indian cricketer to play in all formats? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ. क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टाइम जो चीज़ होती है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ दिस थिंग इज़ दैट कि ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में खेल लिया है. सो द नेम ऑफ दिस लेडी इज़ शेफाली वर्मा. This is very important. So please remember this. Moving on to the next question, that is Mary Kom जो हैं उन्होंने Asian Boxing Championship that was held in 2021, पहली बात कहाँ हुई थी ये? It was in Dubai. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड ये जो मेडल जीता है मेरी कॉम ने, वो कौन सा जीता है? सो शी हैज़ वन सिल्वर मेडल दिस टाइम. बाय लक शी कुडंट गेट गोल्ड मेडल, तो इस बार उन्हें सिल्वर मेडल मिला है. लेकिन हमारी बहुत फेमस बॉक्सर दैट इज नन अदर देन पूजा रानी. ओके, सो पूजा रानी को अपनी वेट कैटेगरी, दैट इज 75 kg कैटेगरी में शी हैज़ वन द गोल्ड मेडल. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पूछा जाए एग्जाम में पूजा रानी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, सो शी इज़ एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग. Next question being, who has been appointed as first women head of World Trade Organization. जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, first who is who kind of questions are too important for FCAT examination. तो first who is who चाहे पुराने हो, that is कि first गवर्नर जनरल कौन रहा था इंडिया का, blah blah. These questions are too important, तो ये question आ सकता है. The answer for this is Ngozi Okonjo. Okay, so you need to remember her. And ये कहाँ से हैं? She is from Nigeria and she is new Director General of WTO. ठीक है, so important information याद रखनी है. Next one is that who has been appointed as first women Chief Justice of Telangana High Court. So the name of the lady is Hema Kohli. Okay, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा याद रखने का नहीं है, सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना है, that is Hema Kohli, और ये अपनी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही है तेलंगाना की. नेक्स्ट वन इज़ जो शेरपा गाइड है फ्रॉम नेपाल, जिन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बाय डूइंग इट 25th टाइम. ओ माई गॉड, दैट इज़ टू मच. ओके, 25 बार ये माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइंब कर चुके हैं. सो द नेम ऑफ दिस शेरपा गाइड इज़ कामी रीता. ओके, सो ही इज़ कामी रीता और इन्होंने 25th टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है. ओके, moving on to the next one, that is 13th edition of India's International Air Show begin in which city? Now coming to
India's international air show. This is also known as Aero India, अगर आपको ना पता हो. So Aero India जो है इस बार उसका 13th एडिशन रहा है. इम्पॉर्टेंट कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था और ये कंडक्ट किया जाता है बाय DRDO, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO, ओके. एंड अगर हम बात करें थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना, थीम गिवन है आपको. सो थीम वाज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ और ये आपका बैंगलोर में हुआ था. यरलंका करके देयर इज अ एयरफोर्स स्टेशन इन बैंगलोर, वहाँ पर हुआ था एंड इट वाज इन फेब्रुअरी, ओके. सो द आंसर विल बी डी, बेंगलुरु. एंड ये बेंगलुरु में भी यरलंका जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ हुआ था. सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 13th एडिशन, उसका जो थीम है, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज, प्लीज रिमेंबर दीज. Moving on to the next question, that is India is to conduct Yudh Abhyas with which country in Rajasthan. तो is to conduct नहीं आएगा, it has been already conducted. युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? So India and USA की जो आर्मी है उन्होंने युद्ध अभ्यास जो है वो कंडक्ट किया है, दैट टू इन राजस्थान. और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ये 16th एडिशन था, ओके. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये 16th एडिशन था एंड वेरी स्पेसिफिकली आर्मी के साथ है, ओके. इट इज़ नॉट लाइक ऑल द डिफरेंट फौज, दैट इज़ योर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सबके एक साथ नहीं था. इंस्टेड इट वॉज जस्ट आर्मी ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इसकी जो मेन थीम रही थी दैट वॉज टू काउंटर टेररिज्म, ओके. सो काउंटर टेररिज्म इसकी थीम रही है. थीम इन द सेंस व्हाट दे हैव वर्कड अपॉन, ओके, नॉट स्पेसिफिकली एज इन कोई थीम रिलीज नहीं किया. काउंटर टेररिज्म वॉज द मेन थिंग एंड February 8 को ये स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज, ओके. सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो एडिशन था दैट वाज 16th एडिशन, February 8 को स्टार्ट हुआ था, इंडिया और US आर्मी के बीच में था, ओके. द नेक्स्ट वन इज डिफेंडर यूरोप 21. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये लीडरशिप जो है US की आर्मी की लीडरशिप के अंडर ये मतलब ऑर्गेनाइज की जा रही है. सो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, USA अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप ये की जा रही है? सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एक्सरसाइज, इसमें टोटल 26 नेशंस आर इन्वॉल्व, ओके, अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये एक डिफेंसिव इन नेचर काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है. और ये कहाँ पर कंडक्ट की गई है? इट इज़ इन अल्बानिया. प्लीज़ रिमेंबर अल्बानिया में है, ठीक है. सो दिस इज़ इन अल्बानिया डिफेंडर. और इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये नाटो है, ठीक है. सो नाटो अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने डिफेंडर यूरोप 21 जो है एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट किया है इन अल्बानिया, ठीक है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रिमेंबर. इन केस इट डजंट कम अप इन FCAT, ये CDS में आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, ओके. Moving on to the next one, that is what is the name of third Scorpion submarine that has been recently commissioned in Indian Navy? इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, एक सिंपल सी चीज़ है, INS करंज जो है इसका आंसर है. और ये आपकी थर्ड कालवेरी क्लास सबमरीन रहेगी दैट हैज़ बीन इंडक्टेड इन इंडियन नेवी. Moving on to the next one, who has won Artist of the Decade award at 2021 Billboard Music Awards? So the answer for this same is Drake. All of you who listens to his song must be knowing that he's quite a good singer. So Drake को मिला है, okay. So Artist of the Decade Award 2021 Billboard Music Award दिया गया है Drake को. Moving on to the next one, that is Indian Navy is set to receive the first batch of 3 MH-60 Romeo helicopters from which country? Now the question that will come up is कि MH-60 Romeo helicopters जो हैं ये हम कौन सी कंट्री से ले रहे हैं? This is the way the question will come, okay. तो अगर हम बात करते हैं, this is Sikorsky MH-60 Seahawk हेलीकॉप्टर्स, ओके. एंड ये मेरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ किए जाते हैं, ओके. सो दिस वी आर टेकिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके. सो USA विल बी द आंसर जिससे हम MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 2022 फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है? इसके अलावा एक और आने वाला है क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम, प्लीज़ याद रखना. सो आंसर फॉर द सेम विल बी C, इंडिया. इंडिया जो है
वो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट कर रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है उसका नाम चेंज करके बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. Why is it done? So recently what happened is that very renowned player, that is Balbir Singh, has recently passed away and उन्होंने काफ़ी मेडल्स, दैट इज़ 3 गोल्ड मेडल जीते हैं फॉर इंडिया. ओके, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट. एंड 1948 लंदन में, देन हेलसिंकी में, he has won in 1952 and in Melbourne. ओके, मेलबॉर्न में उन्होंने 1956 में जीता है. सो 1952 में वो वाइस कैप्टन थे, 1956 में कैप्टन थे, ठीक है, ऑफ द हॉकी टीम. सो इनका काफ़ी नाम रहा है. सो इसी वजह से जो हॉकी स्टेडियम का है वो नाम चेंज किया गया है. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है. एक रिकॉर्ड इन्होंने फॉर्म किया था. मोस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, मोस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय एन इंडिविजुअल जो है वो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मैच इन मेंस हॉकी, ठीक है, दैट हैज़ बीन स्टिल अनबीटन. तो इन्होंने एक रिकॉर्ड सेटअप किया था. दैट रिकॉर्ड वाज 6-1 गोल, ठीक है. तो 6-1 पे विक्ट्री इन्होंने अचीव की थी अगेंस्ट नीदरलैंड. ओके, और इन्होंने इन 6-1 में से 5 गोल जो हैं अकेले इन्होंने मारे थे. सो इनके आज तक का रिकॉर्ड है कि इन्होंने मोस्ट गोल स्कोर किए हैं एंड ही इज़ नन अदर देन बलबीर सिंह. और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? बिकॉज ही हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे. तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं आज तक, ठीक है. कौन से उसमें वो कैप्टन रहे 1956 में, 1952 में वाइस कैप्टन रहे हैं. उसके अलावा इनका जो ये रिकॉर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Coming to the next one, 19-year-old Manu Bhaker, she has won BBC's Emerging Player of the Year award. ये कौन से गेम से associated हैं? Okay, so answer for the same is D, shooting. That's it. That is all you need to remember. So she's associated with shooting. उसके अलावा इन्हें BBC Emerging Player of the Year award दिया गया है. Please remember this. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको बोला था प्लीज़ ध्यान रखना, मैं एक और क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फीफा भी जो है दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया अंडर 17. इन द सेम वे 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इंडिया इज़ क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. सो वो कौन करने वाला है? होस्ट इंडिया करने वाला है. अब 13th एडिशन रहेगा ये. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है. इससे पहले इंडिया जो है 2 टाइम्स इसे विन कर चुका है. 13 एडिशन में से 2 टाइम्स इंडिया हैज़ वन इट. द फर्स्ट वन वॉज इन 1983, द सेकेंड वन वॉज इन 2011. 1983 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम लोगों ने जीता था. 2011 में हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था. इसके अलावा हम रनर अप रह चुके हैं 2003 में, ठीक है. 2001 की अगर बात करें, ये जो था इंडिया में ही होस्ट किया गया था. सो हम सोच के चल रहे हैं क्या पता इस बार भी हम 2023 के अंदर वर्ल्ड कप जीत जाएं. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज़ से जब हमने जीता था तो इस टाइम जो हमारे कैप्टन थे ही वाज कपिल देव. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड 2011 में जो हमारे कैप्टन रहे थे he was MS Dhoni. Okay, so these are 2 important information that you need to keep in your mind. So this being the last question, with this I end this particular part 4. Now I'll be coming up with part 5 and thereafter we will start with certain topics जो कि बहुत important हैं as per exam perspective. Keep following this series. I'm sure that it will be very very helpful for all of you, as I've been putting quite a lot of efforts to find out very important sections that will come up in the examination. And as I've already discussed, ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पे मत देना. बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से. मैक्सिमम ध्यान रहना चाहिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ. दीज आर द एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चन विल कम. ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये कुछ नहीं बल्कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर
all of these things. They will be quite helpful. All the best, keep working hard and share these videos with a lot of your friends who are preparing for the examination, and I'm sure that I'll see lot of people in the list जो भी follow कर रहे हैं अच्छे से और पढ़ाई कर रहे हैं. Okay, so all the best guys, keep working hard, take care.